Chairman, Maharaja Agrasen Technical Education Society. Mrs. Anjali Garg, well-known social worker and businesswoman. My faculty colleagues and ladies and gentlemen, my students. I welcome you all today formally to our institution, Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. This is a business school, and I would like to start with a small incident I observed recently at the airport. It was T3 terminal. I was waiting for my flight, and what I noted was that a lady who was either a Chinese or a Japanese in the age group of something like 30 to 35 was standing over there with her backpack, and she was wearing mismatched pair of shoes. She was wearing one shoe which was turquoise in color, and the other one was hot pink. Very strange. And there were 3 students, young students, 1 girl and 2 boys, also standing over there. Like me, they were also waiting for their turn to enter the terminal. I was close to these youngsters, and I was not snooping on them, but since they were talking loudly, I happened to hear them. One boy said, "Look at this lady, what she is wearing. Perhaps she was in a hurry to come and she forgot to match the colors of the shoes." The other boy said very cheekily, with a very mischievous tone in his expression, he said, "Maybe she had a girlfriend in her room and she exchanged it by mistake, the shoes. That's why she is wearing mismatched shoes." The girl, however, responded very differently. She said, "There is a mismatch. Could it be a new fashion trend? Could it be a business opportunity?" Both the boys laughed at her. "तुझे कुछ पता ही नहीं है, फैशन की बात कर रही है, कोई फैशन होता है?" I could not resist intervening. I said, "Excuse me, I'm not supposed to talk, but do you know, there is already a company called Little Mismatch, and they are selling mismatched socks, and their business today is more than $30 million per year." Interesting. If there could, I said this and I walked off. As I walked off, I thought, my idea was, if there could be a business for mismatched socks, why couldn't there be a business for mismatched shoe colors? Why couldn't there be a fashion relating to that? Why couldn't there be business out of that? Actually, dear friends, the world today is all about creativity and innovation, change. And since we are in a business school, we will say, out of this change, out of this creativity, we have to orient ourselves to create, generate business opportunity, to create, generate employment opportunities. There was a famous poet, Raghupati Sahai Firaq Gorakhpuri. He once said one statement कि मंजिलें हैं कि उड़ी जा रही हैं, मंजिलें हैं कि उड़ी जा रही हैं. Our goals, our objectives, we achieve one, we have another to pursue. We have one technology,
before we get used to that technology, we have another thing to do. You are students of management. You are students of communication. And all your jobs will relate to creating new opportunities, creating new innovations. You need not necessarily be a student of technology or engineering or science to introduce that kind of changes. One example I like to give you. You know, there is a machine for MRI. They call it, it's a huge machine. And when it operates, this machine makes huge noise. Duck, 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 duck. And it is scary. So when children would be taken there for MRI purposes, they would make a lot of fuss. What to do about it? This was a big problem that the doctors and medical technicians were facing. How to solve this problem? We should introduce, solutions were like this, that we should introduce a soundproofing system around the machine, which would cost 50 lakh rupees. We should introduce the basic change in the design, which will involve a research over a period of 5 years and require an investment something like $100 crore, $1 billion. This kind of solutions were coming, and the children, when they had to be taken for the MRI, they would either be given anesthesia or they would be given somehow, you know, they would be made to, it was very difficult actually to persuade the children to go into that. And most of the time, the task which would be done easily, the work would be accomplished by the anesthesiologist. He would inject them with some sedative and then they would lie straight into the machine. But a student, an ordinary person, he went there and he developed one idea. And the idea was that when the children come here, before that give us 10 minutes. We will change the very ambience of that particular room where MRI was to take place. Ambience would be that the child is going to a different planet through a space shuttle. They would put some posters, they would put some curtains, they would put some plastic sheets here and there, and the child is prepared with the idea that, look, this is a space shuttle you are entering, and in this space shuttle, when we go for the heavy thrust, the machine will naturally make a noise. So at that time you have to lie down completely straight, and look, you don't have to shake. Not even a single part of your body should move. And now the person who is the mechanic over there, he is given a sound system to speak in. Child is welcome to the room. You have entered the space shuttle. We are now moving to have an experience at Mars. And so on. And when the machine is to be switched on at that particular time, the child is told, now be ready for the special heavy space thrust. And he switches on the machine starts making very heavy noise, duk 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 duk, like that. And the more noise it makes, the greater is the effort made by the child not to move. And after that, the child comes very happy. Like this. And in this way, this particular individual created as many as 9 ideas. And each idea costing not more than 5,000 to 7,000 rupees. The solutions that were offered by the technicians, engineers, medical technicians, they were costing hundreds and thousands and billions of dollars and rupees. And this idea changed the entire thing. Your seniors, they came up with a small idea of providing food at night. They start supplying food starting at 11 p.m. at night and stop supplying at 4 or 5 in the morning. And they have, earlier they started from Gurgaon, now they have spread their tentacles in other parts of the city also. My dear friends, while I welcome you to this institution, I would like to say
as you work hard in your classes, more important is that you think of ideas, think of doing something different, think of becoming job creators rather than job seekers. The world today is moving on only one thing, and that is creativity and innovation. The biggest obstacle in the task of becoming an innovator, creator is one, fear of failure, and second, fear of being ridiculed. Whenever we come up with something new, there are people who will make a comment, adverse comment. There will be some who will encourage you. This world actually can be divided into the people who want to take us forward, and there are people who want to take us backward. History will tell us that there are large numbers. This world has always been divided into this kind of people, but the victory has always belonged to the people who wanted to take it forward with the new ideas, new thoughts, new processes, new creativity, new innovations. So you have to decide. You have to decide which class will you like to belong to. What new ideas you may have, even for the implementation of your curriculum. Outside the classroom, what different ideas can you have to do it? There are a large number of clubs here where you can participate. So the balance has to be obtained by you people. Balance between learning what is in the classroom and what is outside the classroom, and having patience with yourself. If you are able to do it, I am sure we shall be able to take this college forward. Dear friends, in this college as such stands for two things. One, for its pedagogy, the pedagogical systems for imparting the formal curriculum knowledge to you. And second, your development and growth outside the classroom. Both are equally important. The college life here is not merely about fun, extracurricular activities. It is also about the classes. It is about your friendship. But at the same time, it is also about challenge of having to live with those who are not definitely likable to you. College life is also about some frustrations, about tensions. At the same time, it is also about having joy, fun, frolic. So the kind of balance that you are able to create, that will determine how you actually come out and face the life in the world, real life, when you go out of the college and face the real world. While I wish you all the best, I would say, perform your duties very well. Be in the classes so that the primary purpose of imparting formal education is fulfilled. At the same time, participate also in the extracurricular activities as much as you can. If you have some new ideas, completely feel free to come to me. You will definitely have maximum possible support coming from us. Whatever new ideas you have, whatever thought process you think will develop you and your colleagues and friends, please come and talk to me. We shall support it. Because our interest is that you become well-developed managers, executives, and above all, well-developed, balanced human beings. With these words, I welcome you once again, and I do sincerely hope that your stay of 3 years here will be truly fruitful. Thank you. Thank you very much. Thank you for your words, sir. Sir, indeed, life is all about create, generate, and employ new opportunities. Before I request Dr. Nandkishore Garg to come here,
I would like you to know your chairman. And why I want you to know about him is that Dr. Nandkishore Garg is a well-known politician, no doubt. You should have this sense of pride, who leads you. It is that idea. Dr. Nandkishore Garg was born in a very ordinary family. Very ordinary means really very ordinary. And he faced a lot of difficulties in his childhood. And he struggled his way up. An interesting thing is that when he was just 23 years of age, he was given the responsibility of being the manager of a school. When many of us still feel and think that our education is not complete, we should be a student, he was given the charge of running a school, which he did very successfully. And after that, he established a thrift society, a very famous financial cooperative bank, which continues to be the largest within city even today. And after that, he contested elections. And I would like to share one thing about him, that in 1977, he was offered a ticket by one of the political parties to contest the election. And he declined it. And you know the reason why he declined? He said, politics requires money. I do not have much money. To get money, I will have to indulge in malpractices and corruption. Therefore, let me first earn money through business, and when I have enough money of my own that I cannot be corrupted, then I will enter into the fray of election politics. This was a very big decision. Rarely we find people having such strong moralistic values. When he was MLA, Member of Legislative Assembly, normally, I'm sharing my experience. If you meet your elected representatives, they will tell you, don't worry about any work, please come to me, I'll do any work that you want. और कोई गलत काम भी होना, वो चिंता नहीं करना, मैं साथ हूँ. This is what we hear. Dr. Nandkishore Garg, on the other hand, I'm sharing one thing with you. In his area, I've heard it from somebody. In his area, there was some problem to some business people, industrialists who were running their business units, and they had problem with electricity supply company, DESU of that time. Those people had been caught stealing the electricity, and they wanted him to intervene and said कि भाई बचाइए गर्ग साहब हमें. They were, now imagine, industrialists. They fund the elections also. Industrialists, they provide jobs also. They are influential people. They have employees. They have influence in the area also. Dr. Garg told them, this is what I have come to know, कि चोरों की क्या मदद करूं? Now it takes a very big heart to say this. It takes a very strong conviction that potential voter is told that I will not be able to help you because it is against my principles. I think it is his commitment to principles like this that Maharaja Agrasen Institute of Management Studies and Maharaja Agrasen Institute of Technology are considered as the best within IP University and also beyond. Because I can say this, because recently one student came to me and she said, sir, मेरे 94% number हैं. I could have got admission in DU, but I have chosen this. Now, if a student can think of choosing this over DU, it means technically, largely, we are on the right path. And that right path has come straight
from his vision, his thought process, and his commitment to the principles. So, my dear friends, I have given this introduction about him so that you know him. And we can always feel that the educational institution is headed by a person of principles. So, dear friends, big round of applause for him. I couldn't hear. Please do it faster. Show your commitment to the values and to the people who are committed to values. With these words, I invite Dr. Nandkishore Garg to deliver his welcome address to the students. अंजलि जी, डायरेक्टर श्री C.S. शर्मा जी और सभी परिवार के साथियों, 2003 में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हमने शुरू किया। (1999) में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितनी शायद आपकी उम्र है लगभग, उतने दिन उसको शुरू हुए हो गए मेट को। आईपी यूनिवर्सिटी जब हमने सरकार में थे तो आज़ादी के बाद पहली बार कोई एफिलिएटेड कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी बने अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके लिए 3-4 साल संघर्ष किया और उसके बाद ये पहली यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी। अन्यथा सेंट्रल एक्ट था अंग्रेज़ों के टाइम से कि दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही सब कॉलेज एफिलिएटेड होंगे। तो आईपी यूनिवर्सिटी का एक विजन था मदन लाल खुराना जी का, साहब सिंह जी का, और इसको एक्ट को बनाने में इसको दिल्ली विधानसभा से बहुत मेहनत की थी, परंतु उस समय लोगों ने कहा कि आप एक्ट तो बन जाएगा, कॉलेजेस कौन खोलेगा, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग है ये। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 रुपये की फ़ीस से मैं भी पढ़ा, मेरे बेटे भी पढ़े, अब शायद उसकी बेटी अगले साल चली जाएगी, तो लोग फीस दे के कैसे पढ़ेंगे, कॉलेजेस कौन खोलेगा। दिल्ली में जगह मिलती नहीं है, जगह मिलने के लिए डीडीए के बाद धक्के खाने पड़ते हैं, परंतु जब ऑफिसर्स ने कहा कौन खोलेगा तो हमने कहा एक तो हम जरूर खोलेंगे। और महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी हमने बनाई, लोगों को जोड़ा। फिर महाराजा सूरजमल एक पहले से फार्मेसी इत्यादि चला रहे थे, डिप्लोमा, उनसे बात की। ब्राह्मण समाज के लोगों से बात की तो भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट बना। और अपने केशधारी भाई जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वालों से गुरु तेग बहादुर, तो हमने 4-5 सामाजिक लोगों से बात की जिनकी मेंबरशिप अच्छी हो, खुली मेंबरशिप हो, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में बहुत अच्छे कॉलेज चल रहे हैं। श्री राम कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है। लगभग ये सब कॉलेज हमारे अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा बनाए हुए हैं। इसलिए हमने लोगों से कहा कि उस समय उन लोगों ने बनाया था, तो आज एक बार फिर नई पीढ़ी भी कुछ करे। और हमने लगभग 50 साथियों को जोड़ा और आज वो संख्या 200 से ज़्यादा है। और ये सब कुछ आज आपके सामने है, क्योंकि आप नए आए, इसलिए डायरेक्टर शर्मा जी ने भी आपको शायद थोड़ा कोशिश की है बताने की हु आर दी पीपल बिहाइंड इट। नंदकिशोर गर्ग के साथ आज 200 से ज़्यादा परिवार जिन्होंने अपनी अच्छी खासी इनकम में से 51 लाख रुपए देकर ट्रस्टी बने हैं। लगभग 600 लोग ऐसे हैं जो हमारे आजीवन सहयोगी हैं, जो 2.5 लाख रुपए दिया, किसी ने कुछ दिया। तो एक बहुत बड़े परिवार को साथ लेके हमने दोनों इंस्टीट्यूट यहाँ और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल में, इसके साथ साथ पैरेलल पंजाबी बाग में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल 400 बेड का है। और इसी 28 अगस्त को जस्ट आफ्टर 1 वीक बहादुरगढ़ में महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1000 बेड का हॉस्पिटल भी होगा और मेडिकल की सभी पढ़ाई। अग्रवाल, जहाँ से हम सब अग्रवाल्स को ये मानते हैं, हम लोग कभी वहाँ से 5100 वर्ष पूर्व, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब स्कूल लेवल से आए हैं और एकदम कॉलेज में पहुँचे हैं। बहुत बड़ा सपना होता है हर आदमी का। जब LKG में एडमिशन लिया था कभी, तो ये भी सोचा था ना ये करेंगे, कुछ इंजीनियर बनने वाले मेट में आ गए, अब अच्छे मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर
वो आपके माध्यम से बनेगी। तो 5100 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन हुए, उसके बारे में थोड़ा आजकल आप भी देखेंगे, थोड़ा आजकल तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं गूगल पे और उन चीज़ों पे। तो वो अग्रोहा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। महाभारत युद्ध में पांडवों के साथ महाराजा अग्रसेन ने भी युद्ध में पार्टिसिपेट किया था कौरवों के अगेंस्ट, इसलिए थोड़ी बैकग्राउंड। आप में से महाराजा अग्रसेन का नाम जिसने सुना हुआ था अब तक, जरा हाथ खड़े करेंगे? काफ़ी है, और इसलिए तो थोड़ी और जानकारी बढ़ाना, और थोड़ी हम भी हैं उसको देंगे आपको। तो उस समय से एक प्रिंसिपली उन्होंने क्या सिखाया था, पहले बार वर्ल्ड के अंदर रिपब्लिक, गण शब्द जो है इस भारत की देन है पूरे दुनिया में। गणतंत्र थे और जनपद, जिसको आज जिला डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उन सब के माध्यम से एक अच्छी शासन व्यवस्था दी थी। डिसेंट्रलाइजेशन था, जो अब आप लोग पढ़ाएंगे आपके लोग, विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, और उसमें अंदर सबको बराबर, जो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्विटी, जस्टिस टू ऑल, ये जितनी अच्छी बातें हैं, ये उन्होंने प्रैक्टिकली 5000 साल पहले इस देश के अंदर एक बड़े भूभाग पे, अग्रोहा का मतलब 200 किलोमीटर दूर केवल राजधानी थी, उसका एरिया आज का जो पंजाब है लगभग सारा उसमें था, उत्तर प्रदेश का मथुरा, आगरा, सहारनपुर, ये सारा, और राजस्थान, भरतपुर, अलवर, ये सारी बेल्ट, एक बड़ा शासन व्यवस्था के अंदर ये सब कुछ किया था। तो हम भी क्या वैसा कुछ कर सकते हैं? कैन वी रेप्लिकेट दैट? क्या अगर वो एक व्यक्ति कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं, हम सब में पोटेंशियल है। आज देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितने बिजनेस हाउसेज मिलेंगे, वो सब महाराजा अग्रसेन को उस समय के मानने वाले, उनको अपना वंशज मानने वाले लोगों के क्यों हैं? वो तो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे। उन्होंने एक नया प्रिंसिपल दिया, उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय से वैश्य वर्ण में अडॉप्ट किया, ट्रांसफरेबल था, ये आजकल की तरह रिजिड नहीं थी। तो वो वैश्य हो गए, और वैश्य हो गए तो वैश्य का गुण कर्म वेदों में क्या लिखा है? शर्मा जी काफ़ी इसमें विस्तार से कभी क्लास में इनसे क्या बताया करेंगे कि वैश्यों का एक ही काम है, वेदों में भी लिखा हुआ है कि वैश्यों का काम है कृषि, वाणिज्य, विदेश व्यापार, पशुपालन, ये जितनी आप चीज़ें, प्रोडक्शन करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये मोटा मोटा वैश्यों का काम है, जो 4 वर्णों में से जिसकी 3rd कैटेगरी है। और शरीर के रूप में देखें तो आप, हम क्या हैं? हम जो वैश्य हैं वो इस शरीर में पेट है, और जिसका पेट ठीक है उसका सब कुछ ठीक है, ये माना जाता है। और तो जिस देश में व्यापार ठीक होगा, व्यापार के लिए जो सिंगल विंडो और ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं मोदी जी? क्योंकि व्यापार का सरलीकरण करें, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा, तो कम प्रॉफिट पे लोग काम कर सकते हैं। तो एक आदर्श व्यवस्था यदि 5000 साल पहले हो सकती तो फिर हो सकती है। ये बात फिर से आपने, हमने, जो नई पीढ़ी आ रही है इसके माध्यम से करनी है। तो आप कहेंगे आज पहले ही दिन इतनी बड़ी भारी भारी बातें क्यों बता रहे हैं? एकदम मन करता है ना, स्कूल से आए, कोचिंग में जाते थे, ट्यूशन जाते थे, अब आज़ाद हैं। ये आज़ादी तो है, परंतु जिम्मेवारी धीरे धीरे, अब लगभग 17-18 साल की उम्र के हैं, अब कई 18 क्रॉस कर गए होंगे, कुछ 6 महीने में क्रॉस कर जाएंगे, तो अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। तो आपने, माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग है। कोई ना कोई आज साल में आपके माँ बाप आप पर 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 महीना खर्च रहे हैं, तो आप इस कॉलेज तक पहुँचे हैं। क्योंकि कई तो गाड़ी में भी आते हैं। कितने लोग बच्चे हैं जो गाड़ी लेके आते हैं? खुद शर्माए नहीं हैं 50-100। अब एक गाड़ी मेंटेन करना आजकल कितना है, और गाड़ी को पार्किंग के बाद फिर प्रेशर डालना हमारे ट्रस्टियों पे या कहीं से जी गाड़ी अंदर आने दो। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, बसों में ही आए जाया करते। बसों में आने जाने की आदत आज भी होनी चाहिए। इन्फोसिस का नाम तो सबने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, और 10-10 हज़ार रुपये उनकी 5 महिलाओं ने दिए थे, तो 7 ने और 7 पुरुष ने मिलकर शुरू की थी 1986-87। उनकी जो आज की तारीख में शायद नारायण मूर्ति और उनकी मिसेज कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के तो होंगे। वो आज भी बेंगलोर में बस में जाने में संकोच नहीं करते।
वो आज भी अक्षत पात्र के माध्यम से स्कूलों में मिड डे मील तैयार कराती है, कॉलेजेस में लेक्चरर जाने जाते। तो पैसा होने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसको शो करें। गाड़ी में आना जरूरी नहीं, थोड़ा शरीर को हर तरह की आदत डले, बस में चढ़ना उतरना, लोग क्या बोल रहे हैं, तो हर तरह के इंटरेक्शन होगा तो आप बहुत कुछ सीखें जो क्लासरूम में नहीं सीखेंगे, बस में सीखेंगे, मेट्रो में सीखेंगे। और सीखने के लिए हमेशा अपने जितने भगवान ने हमें दे रखे ना, आँख कान ये सब खुले रखें, जानकारी जहाँ से मिल सकती है, और उसमें कौन सी अपने को अपनानी है कौन सी नहीं, ये फिर विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। हमें समझ होनी चाहिए कि कौन से मेरे लिए हितकारी है, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए। और हम यदि हो सके तो वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारा तो क्या है, हम तो पूरे विश्व को, पूरे उसको एक परिवार मानते हैं। और जिस दिन इतना हमारा विजन बड़ा हो जाएगा, उस दिन देश की और पूरे विश्व की सब प्रॉब्लम्स जो है ना, उनका सॉल्यूशन इसी एक लाइन में है। अगर सबको परिवार मान लिया तो सब भाई हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। पर्यावरण की रक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, सारी चीज़ें इनसे निकलती जाएंगी। तो एक आज थोड़े थोड़े आइडियाज़ हैं, आप इनके ऊपर चलेंगे। और डेली सुबह उठते ही अपने माँ बाप को पैर छूने में शर्म आती होगी। रामायण के दिनों में फिर शुरू हो गई थी, जब रामायण सीरियल आ रहा था। और कुछ ना कर सको तो एक मुस्कान जरूर दे के आओ निकलते समय अपने माँ को या पिता को, बाबा को, जो घर में बड़े हैं। इसमें तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि आजकल हम वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो गए ना, पैर छूने में ज़रा शर्म ज़्यादा आती होगी। तो एक मुस्कान तो सब दे सकते होंगे, दे सकते नहीं दे सकते। मेरी बात पसंद है, ज़रा एक बार उसको माने कि ताली बजा के कहेंगे ठीक है। तो कल से पहला काम तो करेंगे ये। उसके बाद आकर अपने गुरुजन, गुरुजन का अर्थ केवल पढ़ाने वाले नहीं, जो इस परमिसेस में आपकी सेवादार भी लगे हैं, वो भी सब आपके लिए हैं। तो उनको भी हाय हेलो नमस्ते, पीएन को भी कुछ कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, कितना ये संस्कारित बच्चा है, बड़े अच्छे घर का है, उसके मन में आएगी ये बात। और गुरुजन तो गुरुजन ही, समय पे आएँ, पूरा पढ़ें, जो बताएं उस पर चलें। कुछ टीचर से मैं कहता हूँ कि आप शब्दों से नहीं किसी को प्रभावित कर सकते, आपकी चाल से, आपके कपड़ों से, आपके बात करने के ढंग से आप कितना किसी को इन्वॉल्व हो सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुपों में आपसे बात करें, बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करें। ये मैं टीचर्स, क्योंकि परिवार है ये, फैमिली में जब आ जाएंगे तो सबके सुख और दुख साझी हैं। ये भावना लेके हम सब चलें। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारे पहले आप अपने टीचर इंचार्ज से बात करें, उससे सॉल्व होता नज़र नहीं आ रही तो शर्मा जी से मिलें। मिलने में संकोच हो तो SMS कर दें। वहाँ भी दिक्कत हो तो हम हर मंगलवार को हम सारे यहाँ आते हैं। किसी को किसी प्रकार की घर की समस्या भी हो तो खुलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर की कोई बीमार है, उसके कारण से आपके टेंशन है, उन सब के सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक संगठन है। हम यहाँ केवल डिग्रियां बांटने के लिए कॉलेज शुरू नहीं किया। डिग्री तो आज इतने इंटेलिजेंट आप बच्चे हैं कि अपने घर में भी खुद पढ़ा के भी आप कर सकते हैं। इसलिए कई बार कई बच्चों को लगता है क्लास में जाने की क्या ज़रूरत है, चलो आज दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के घूम आएँ, मॉल में चले जाएं, पिक्चर में चले जाएं, अवॉइड करें। पिछले साल भी एक एक्सीडेंट हुआ था, हमारा एक स्टूडेंट, उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी। इसलिए यारी दोस्ती बाद में, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेशन। जीवन में कुछ बन के दिखाएं, माँ बाप को खुशी मिल जाएगी। और आपको आने वाले जो आपके जीवन के 60 साल 70 साल हैं, उसमें ये 3-4 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ BBA करेंगे, BCom करेंगे, जर्नलिज्म करेंगे। इन 3 साल में बहुत सीखने की प्रवृत्ति, अधिक से अधिक सीखना, ये मन में लग के चले। आप अच्छे कॉलेज में आए, अच्छे टीचर आपको मिले हैं। हमारी मेरिट भी लगभग मैं समझता हूँ 25 से 30-35% तक मेरिट यूनिवर्सिटी की में हम आते हैं। टॉपर भी हैं। मेट में इस बार 15 मेडल में से 7 हमारे एक कॉलेज के हैं, 16 कॉलेज में से। तो यहाँ भी लगभग वो स्थिति है। और इस बार का मैंडेट शर्मा जी को मैंने कहा कि इस बार मुझे हर 20 की मेरिट लिस्ट में मुझे आधे लोग आपके चाहिए। अच्छे स्टूडेंट्स को जो प्रोत्साहन चाहिए वो दो, अच्छे टीचर्स को दो। इस बार हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर नेशनल भी कराएं और इंटरनेशनल भी कराएं।
उसके लिए भी हमने कल बातचीत की है कि एक 10 दिन का प्रोग्राम यूरोप के लिए बनाएं, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड और CERN, जहाँ पर वो गॉड पार्टिकल और ये सब कुछ ढूंढ रहे हैं, एयरबस का हम ये सारी चीज़ कराएं, और एक अमेरिका के नासा और उससे रिलेटेड। तो जो लोग इच्छुक हों, शर्मा जी आपको बताएंगे, उनका एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उनमें छांटेंगे अच्छे स्टूडेंट्स को छांट के, और उनके साथ हर 10 के ऊपर एक अच्छा टीचर। स्टूडेंट्स अपनी पेमेंट देंगे, किसी को बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो पेमेंट नहीं दे पाएगा, उसमें कुछ हिस्सा कहीं मैं स्पॉन्सर भी करा सकता हूँ, परंतु टीचर वो जो आएगा जो वाकई ब्रिलियंट होगा और जो परिवार इसको मानता होगा। तो हर 10 के ऊपर हमने उनसे बात की कि एक टीचर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दें, ताकि हम यहाँ लगभग 50 स्टूडेंट्स को दोनों इंस्टीट्यूट के भेजना चाहेंगे इसको मई एंड जून जुलाई में। तो उसमें से भी आप लोगों में से ही जो अफोर्डेबल जिनकी स्थिति है उनमें से ऐसे लिस्ट बनेगी, और शर्मा जी इसको देखेंगे। तो ऐसे टीचर्स को भी हम उसको प्रमोट करेंगे। टीचर्स को अभी भी यहाँ जो आए थे जिनको पढ़ने में सबको हमने मदद की है। आज 17 साल में मेट में मेरे ख्याल हमने अपने 50 PhD यहीं पढ़ाते पढ़ाते तैयार किए हैं। M.Tech तैयार हुए। आपके यहाँ भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी मेरे ख्याल PhD भी कर रहे हैं और M.Phil कर रहे हैं। तो सब लोग लग के पढ़ने का काम पढ़ाने वालों को भी कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है मुझे सब कुछ आता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखना है, पढ़ाने वालों को और ज़्यादा सीखना है, क्योंकि आपके ज़माने में 70-75% वालों के बहुत वाहवाह होती थी। अब 95% वालों को एडमिशन नहीं मिल पाता। तो एक नई पीढ़ी जो ये आई है ये बहुत इंटेलिजेंट है, और इनके सवालों का जवाब देने के लिए हम टीचर्स को भी उससे ज़्यादा इक्विप रखना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, ताकि जब कोई सवाल पूछेगी कोई बेटा बेटी तो उसका जवाब ना दे पाए वो स्थिति ना आए, और ना दे पाएँ तो संकोच ना करें, ये बताएं कल हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा या दूंगी। एक पूरे विश्वास के साथ अच्छे वातावरण में समय पर सब चीज़ें हों, ये सारी व्यवस्थाओं के अंदर रहें। अटेंडेंस के लिए 75% यूनिवर्सिटी का कंपलसरी मैंडेट है। पूरा देश चिंतित है इसकी अटेंडेंस। आज के बच्चे क्लास में नहीं बैठते, फरलो मारते हैं या बंक करते हैं, नई नई चीज़ें हो गई हैं, सामूहिक मिल के एक दूसरे को संदेश दे देते हैं, झूठे संदेश दे देते हैं आज क्लास नहीं हो रही है और आज हम घूमने चलें। ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, और करें भी तो मेरे जितने टीचर्स हैं वो इनका सबकी मॉनिटरिंग करें, पेरेंट्स को बताएं। ये लड़कियां तो बाई 99.9% से कोई चिंता नहीं है। मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ, लड़कों से, ये हर चीज़ में हर मेरिट में लड़कियां आगे निकल जाएंगी, तो आने वाले 5-4 साल में बहुत दिक्कत आपको आने वाली है। इसलिए सीरियस हो जाओ, नहीं तो आगे आगे उल्टा रिजर्वेशन ना करना पड़े 15 साल बाद, ये स्थिति आ सकती है। इसलिए मेरे जितने बेटे हैं वो अपने आप को सीरियस मोड में ले आए और कम्पीट करें कि हमने बराबर रहना है, ना कोई भेदभाव रखना, क्योंकि आज की बेटियां, मोदी जी ने इनको थोड़ा और ज़्यादा पैम्पर कर दिया है। अब तो बेटियों को पढ़ाना, और कल्पना चावला भी इन्हीं में से निकलेंगी। आज 5 बड़े बैंकों की CMD, क्योंकि आप सब कमर्शियल लाइन में आ रहे हैं, महिलाएं हैं। बड़ा रेयरेस्ट होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम बताएंगे आप में से कोई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन है? और ICICI बैंक, अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक की बनी है, एक्सिस बैंक की है शिखा शर्मा, वो उषा अनंत सुब्रमण्यम। ये दिखा रहा है कि वक्त कहाँ जा रहा है। तो भाई सब लोग मिलजुल के, कोई डिफरेंशियल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपको प्रोत्साहन देने के लिए कि आप बेटे भी बेटियों के मुकाबले में पढ़ाई में भी बराबर रहें, आगे ना निकल सके, ताकि इस देश में सम रहें, सब चीज़ें बराबर रहें, सबको बराबर, ना जाति का फ़र्क हो, ना भाषा का फ़र्क हो, और ना जेंडर का फ़र्क हो। हम सब मिलजुल कर इस भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है। जिस बेटी ने आज फर्स्ट ईयर की थी, सृष्टि नाम था शायद, जिसने सरस्वती वंदना की, हाँ, तो पर फर्स्ट ईयर वाले भी देखें कि सब एक्टिविटी में आपके लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्टेडियम के लिए, इंडोर स्टेडियम के लिए हम सब कोशिश करते हैं।
अभी फिजिकल के 2 टीचर रखे हैं, तो टीमें भी तैयार करनी है, क्योंकि केवल पढ़ाई में अच्छे हो जाए कुछ नहीं होने वाला। अपने शास्त्रों में क्या लिखा है, शरीर माध्यम खलु साधनम, तो शरीर भी निरोग हो। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि ये देश 20-50 साल तक सभी देवी देवताओं को एक अलमारी में बंद करके रखते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु फुटबॉल के मैदान में, खेल के मैदान में हम सब लोग निकलें, शरीर को बिल्कुल पुष्ट करें, मजबूत करें, और पढ़ने में और जिस भी फील्ड में हम जाएं पूरे मन से जाएं। जहाँ मन होगा वहाँ सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस काम को करें पूरे मन से करें। अब 3 साल तक ये तपस्या का आपका है, इसके साथ साथ आप लोग अपनी कैट की, मैट की आगे तैयारी करेंगे, कोई MBA की तैयारी करेगा, कोई अपनी रोज़गार के लिए खुद। दूसरी बात, रोज़गार देने वाले बनना है हमने, नौकरी करने वाले नहीं। और मुझे लगता है कि BBA के जब हम ऑफर दिलाते हैं तो अधिकांश बच्चे नहीं जाते, बड़ा अच्छा लगता है। आगे पढ़ने जा रहे हैं या रोज़गार देने वाले बनना है, क्यों नौकरियां सीमित हैं और सीमित ही रहेंगी। रोज़गार देने वाले बनेंगे तो भारत का GDP 1200 साल पहले पूरे विश्व का 35% था। एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड का हमारा लगभग 30% था, आज हम बिलो 2% हैं। तो हम ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा प्रोडक्शन करें, देश में डिस्ट्रीब्यूट करें, वर्ल्ड में सब जगह भेजें, तो लक्ष्मी मित्तल की तरह बन के दिखाएंगे। और आज हमारा पिचई अभी गूगल का बना है, इससे पहले जितनी बड़ी जितने MNC हैं, अमेरिका में कहते हैं कि बढ़िया CEO लेना हो तो भारत से लो। तो पेप्सिको से शुरू हुआ था सिलसिला, लगभग चलता ही चल रहा है। और 40 एज में, 45 में, 50 में, तो आपके लिए बहुत अवसर आगे आने वाले हैं, बहुत चुनौतियां हैं। हर चुनौती को अवसरों में बदलेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आज के इस पहले दिन आप सबका बहुत बहुत इस परिवार में आने में स्वागत है। धन्यवाद। All my teachers and my dear students, welcome all to a new phase of your life, that is college life. सही है ना? Very honored to be here in between you. ये रिकॉर्ड हो जाएगा। And thought you are enjoying your college life as well as take your responsibilities further. You are on the top roller coaster of the life at this time, as well as your direction towards the future. I wish best of luck for that and feel refreshed with all of you and feel a heartiest congratulations and welcome for you all. Thank you. और मुझे भी बोलने के लिए शर्मा जी ने एकदम भेज दिया। मैं कहा करता हूँ, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए आए हैं जिनका मार्गदर्शन एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है। उसके लिए 2 शब्द मैं हमेशा कहा करता हूँ, ए मैन विद विजन एंड मैन विद मिशन। और जिन वैल्यूज़ की उन्होंने बात आपके सामने रखी है, आज हमने भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन मैं कविता की 2 लाइनों में कहा करता हूँ, कल रात खुदा से मुलाकात हुई, कल रात खुदा से मुलाकात हुई, सपने में ही सही थोड़ी सी बात हुई। मैंने पूछा ये इंसान कैसा है, मैंने पूछा ये इंसान कैसा है, उसने कहा सदा इसके साथ रहना बिल्कुल मेरे जैसा है। जीवन में कितने संघर्ष करते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अनेक लोगों के, अनेक संस्थाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपनी यात्रा का प्रारंभ और आज कितनी संस्थाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका भी उल्लेख किया। और को जो कुछ अननोन बातें थी वो
CS शर्मा जी ने आपके सामने रखी हैं और चेयरमैन साहब के बारे में संघर्षपूर्ण यात्रा के लिए मुझे कहना होगा, अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षाबंधन हो जाता है। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षाबंधन हो जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या के द्वारा मानव माथे का चंदन हो जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, एक ऐसे नेतृत्व के देखरेख में यहाँ अध्ययन करने के लिए आए हैं। और शर्मा जी जो मैं तो कहा करता हूँ कि वो पौराणिक संदर्भों के माध्यम से, धार्मिक कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्यों को किस रूप में आपके सामने रखते हैं। अध्ययन के अलावा पढ़ाई तो सब कॉलेजों में होती है, लेकिन कॉलेजेस में पढ़ाई के अलावा संस्कार और योग्य व्यवहार ये बहुत कम जगह पर मिलता है। मैं उनके लिए मुनव्वर राणा की पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ जो मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। अभी मेरा इंटरव्यू ये कर रही थी रजनी जी, तो वहाँ भी मैंने उसका उल्लेख किया। नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, शर्मा जी, नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आप हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। मुझे कुछ छोटी छोटी पंक्तियों का कलेक्शन करने का कुछ शौक़ रहता है, और वो मैं जब आप घर परिवार में अपने पिता के कंधे पर बैठ कर के कभी कहते होंगे, पापा मैं आपसे बड़ा हो गया हूँ, पापा मैं आपसे बड़ा हो गया हूँ, तो उस पर मुझे कुछ लाइनें बड़ी अच्छी लगी। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा, मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा, जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, देखो पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस गलतफहमी में भले जकड़े रहना, इस गलतफहमी में भले जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रहना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा तेरा रंगीन सपना टूट जाएगा। अभी एक और है इसी के साथ ही, तब पता लगेगा दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है, दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूँ बेटा, मैं तो बाप हूँ बेटा, उस दिन तू सच में मुझसे, मैं तो बाप हूँ बेटा, बहुत खुश होऊंगा उस दिन तू सच में मुझसे bड़ा हो जाएगा, जब तू मेरे कंधे पर नहीं जमीन पर खड़ा हो जाएगा। आप अपने आप को यहाँ से इतना योग्य बना करके निकलें, जिन बातों की चर्चा डॉक्टर नंदकिशोर जी कर रहे थे वो आपके जीवन का ध्येय बन जाएं और अनेक लोगों के प्रेरणा स्रोत आप भी बने। और कहने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर जो मुझे बहुत अच्छी पंक्तियां और लगती हैं, इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना, इतनी खूबसूरती से ज़िंदगी में निभाओ किरदार अपना, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल रहे हैं जिन लोगों से
बड़े संकोच से एडमिशन लेने के बाद लगता होगा कि हम कहाँ आ गए, कैसे दोस्त होंगे, कैसे प्राध्यापक होंगे। हिचकते हुए मिल रहे हैं जिन लोगों से, क्या पता कल वही ज़िंदगी के मायने बन जाएंगे। ज़िंदगी में कुछ और याद रहे न रहे, ज़िंदगी में कुछ याद रहे न रहे, पर ये सब लोग बहुत याद आएंगे, ये सब लोग बहुत याद आएंगे।